Dear students, this is Shobit Kabir and today I am going to discuss with you your English paper, fine, that you are going to write in your March exams. The paper consists of 4 sections. In the first section, you have got 3 questions. This is called as the reading comprehension. Reading comprehension has got 15 marks, 5 each, 5 plus 5 plus 5. The first question is asked from the poetry section. This is asked from the poetry section. What you will be given is, you will be given an excerpt from a particular poem, and that excerpt will be followed by the questions. And the questions mostly asked are the pronouns used in the poem, or you may be asked certain poetic devices. Fine. And at times you are asked to explain certain phrases. Fine. This is the first question that is given to you in your English paper. Fine. And here I would like to add, for this section, I suggest to you to read 3 poems. Number 1, prayer. Number 2, speak up. Number 3, when you are old. Fine. This is the first question. Now going down to the second question. When we talk of the second question here again carries 5 marks, 1 mark each. This question is asked from the prose section. Again I repeat, this question is asked from the prose section. And the most important chapter that you have from the prose section for this question is Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. Frequently this excerpt is taken from, rather this question is taken from that very chapter. 5 marks. See, again you will be given an excerpt over here in question number 2, and this question excerpt is followed by the questions. 5 questions are there. And what are the probable questions? Again, you have questions like I did mention earlier here, the pronouns are asked there. Number 2, you will be asked about the parts of speech. One of the important questions. Parts of speech. Fine. Number 3, there are the questions like, for example, I mentioned over here, they may ask you the meaning of certain words, they may ask you about the antonyms, they may ask you about the synonyms. Fine. Even they may ask you to explain certain phrases which are used in this section. Fine. Or rather in this passage. Make sure that you give the meaning of these words, the words which are asked in the questions down here. I will just show these questions to you. You can see the questions over here. Fine. What you have to do? Own soil refers to, give the opposite of victory. What you have to do over there is, you have to give the meaning, you have to give the opposites or whatever, synonyms or antonyms we call, you have to give them from this passage only. You should not refer to the dictionary or anything else. See to it that you find the meaning of a particular word over here, how it is used in this particular passage. Say what happens at times. For example, I see over here, my word is book. Usually I have seen that this book is used as a noun. Fine. But what happens? It may be used, or it is at times used as a verb as well. Since I have got this thing in my mind that book is a noun, and I directly go and write down the word as noun in my exams, wherein we get a good 0. That should not happen. We have to be careful and see to it how it has been used in the particular passage. Fine. So make sure that you keep this thing in mind. And one more thing, if the questions are asked, these are very short answer type questions, so you should not just give the details of the things. Simply go and just answer them as they have been asked. Just see to the weightage of the question. Fine. One more thing I would like to add over here, that is this one. See to question number A, if it is there, then you have to see to it in the beginning. Question number 2, that's B part, see to it then afterwards. C, D accordingly. So you will reach to the end of the passage. Fine. So these are the 2 questions that are asked in the section 1, that is reading comprehension. Third question.
Third question is over here that is mentioned as what you call the unseen passage. हमें यहाँ पे इसको बताया जाता है ये unseen passage होता है. Actually unseen passage नहीं होता है. It is actually the passage that you are already familiar with. For example, यहाँ पे जो passage दिया गया है इस model paper में जो हमारा passage दिया गया है, it's all about coronavirus. Who is not familiar with coronavirus? Everybody. Fine. अब familiarity जो होती है यहाँ पे that is actually checked over here. एक तो आपका reading comprehension, जैसे simply आप ऐसे ले लीजिए कि आपको न्यूज़पेपर हाथ में दे दिया गया या आपके हाथ में कोई बुक आ गई, आप उस बुक को पढ़ लेते हैं या न्यूज़पेपर को पढ़ लेते हैं. न्यूज़पेपर के पढ़ने के बाद आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा, जी भाई बता दीजिए कि कहाँ पे कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई किया गया, दैट इज चाइना. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे से फॉर एग्जांपल दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, which are the most affected countries, name the most affected countries of by COVID-19. फाइन. आपको आराम से पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री ज्यादा अफेक्ट हो गई थी. दैट इज गिवन इन द पैसेज. देयर इज नो नीड टू जस्ट वंडर हियर एंड देयर. सीधा आप कंसंट्रेट कर लीजिए पैसेज पे एंड आपको अपना आंसर मिल जाएगा. फाइन. सो दिस इज सेक्शन 1 एंड यू गॉट 15 मार्क्स. आपके हो गए 15 मार्क्स. फाइन. अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहता है. जो हमारा दूसरा सेक्शन है दैट इज कॉल्ड एज द ग्रामर सेक्शन. यहां पे मैं बताऊंगा आपको ग्रामर सेक्शन की बात. सी दिस वन. यहां पे मेरा है ग्रामर सेक्शन, ये वाला. नाउ आई विल बी मार्किंग दिस एज ब्लू. फाइन. सिंस आई एम नॉट दैट गुड अ टेक्स्ट सेवी, दैट्स व्हाई देयर इज एन इशू. अब यहां पे आपको याद रखना है अगेन 15 मार्क्स. यहां पे आपके 15 मार्क्स होते हैं ग्रामर सेक्शन में. We are bit scared about this section. यहाँ पे थोड़ा सा डर लगता है हमें कि ग्रामर में पता नहीं कौन सी बला आ जाती है. ठीक है. इसीलिए यहाँ पे उस मिथ को बस्ट करने के लिए लेट मी जस्ट गो ऑन टू दिस वेरी पॉइंट. सबसे पहला यू शुड बी नोइंग दिस सीक्वेंस. आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है दैट इज रिलेटेड टू द मॉडल्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल्स ऑफ गिवन देयर. आपके दो क्वेश्चन यानी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है. मॉडल्स यहाँ पे दिए गए हैं. आपके यहाँ पे 2 ब्लैंक्स आर देयर. फाइन. सो आपके 2 ब्लैंक्स यहाँ पे दिए गए. इफ यू डोंट नो एनीथिंग, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है ना, ठीक है, सिंपली अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, पिक एनी 2 मॉडल्स फ्रॉम हियर एंड ड्रॉप देम इन द ब्लैंक्स. कुछ भी कर लो. ठीक है. वो मे बी लास्ट एंड दिस इज द लास्ट ऑप्शन दैट यू आर लेफ्ट विद. पहले तो ये है कि आई होप कि सभी लोग प्रिपेयर हुए होंगे, सभी लोगों को पता होता है कि मॉडल्स को यूज कैसे करना है. आई मीन टू से इफ यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शन, जस्ट यू हैव स्टिल वन ऑप्शन विद यू कि पिक अप एनी मॉडल फ्रॉम हियर, एनी 2 मॉडल्स. एक को फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स डैश डेवलप हैबिट ऑफ रीडिंग. ठीक है. तो मैं बताऊंगा यहाँ पे, चले लिख लेते हैं मस्ट डेवलप हैबिट ऑफ रीडिंग. फाइन. अगर सपोज मुझे पता नहीं है मस्ट लगाना है, लेट मी जस्ट पिक एनीवन. मे बी कभी आपका गेस ही ठीक हो जाए. फाइन. सो यू शुड नॉट लीव द क्वेश्चन. क्वेश्चन को ड्रॉप नहीं करना है. फाइन. नंबर 2 आपका यहाँ पे आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. फाइन. अगेन यू हैव अ थिंग. आपके पास आर्टिकल्स होते हैं 3. नॉर्मली आप 3 लिखते हो लाइक यू व्हाट आई मीन व्हेन आई से 3 जब मैंने बोला ऐसे ए एंड और द. चलो 2 मिनट के लिए ये भी पता कर लेते हैं, हमें 0 आर्टिकल का कोई नोशन ही नहीं है. एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं ना यहाँ पे हम कि इन 3 में से अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, लेट मी जस्ट राइट ए. अगर एक में ए लिखेंगे, दूसरे में एन लिखेंगे, तीसरे में द लिखेंगे. चलो ठीक है, हो गया क्वेश्चन. फाइन. यानी कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इफ यू डोंट नो एनीथिंग फॉर दोज स्टूडेंट्स, उनके लिए आई एम श्योर कि जिनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ दे नो व्हाट आर्टिकल्स आर एंड हाउ दे आर यूज्ड. बट मैं उनको भी एड्रेस कर रहा हूँ जहां पे जिनको पता ही नहीं होता है कुछ. ठीक है. व्हाट दे डू इज दे लीव द क्वेश्चन. क्वेश्चन लीव करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. आपको क्या करना है, आर्टिकल्स का पता है आपको ए एंड एन एंड द, ये आर्टिकल्स हो गए, लगा लो इनको यहाँ पे. फाइन. देन यू हैव द थर्ड क्वेश्चन दैट इज द रिलेटिव क्लासेस. सो यहाँ पे 2 मार्क्स हो गए आपके मॉडल्स के, 2 मार्क्स हो गए आपके व्हाट यू कॉल द आर्टिकल्स. अब आते हैं थर्ड वन में, वो होते हैं 3 मार्क्स आपके रिलेटिव क्लासेस के. रिलेटिव क्लासेस में आपको WH वर्ड को याद रखना है. जस्ट कंबाइन द 2 एंड यू विल सी योर जॉब इज डन. फाइन. देन द थर्ड नेक्स्ट वन. यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला लोगों को डिफिकल्ट लगता है. ठीक है. ये है चेंज द नरेशन. ठीक है. बट आई मीन डायरेक्ट स्पीच से लेके इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करना है. फाइन. लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग. एक बात आपको मैं जरूर बता दूं यहाँ पे, जब भी आप नरेशन करते हैं, नरेशन करने के टाइम पे आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी होगी. ठीक है. सी फर्स्ट 5 पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर. 5 पॉइंट्स आप याद रखिए. नंबर 1,
you should be able to identify the sentence that is given in the blanks. आपके blanks में जो दिस inverted commas में जो sentence लिखा गया होता है उसको आप identify कर लीजिए. What I mean to say over there, जब मैंने ये बता दिया कि आप उसको identify कर लीजिए, fine. I am talking about the kinds of sentences. यहाँ पे जब मैंने ये वाला पॉइंट बता दिया कि आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लीजिए. इन्वर्टेड कॉमास में अगर आपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने आइडेंटिफाई कर लिया इसको that the sentence that is given over there is a statement. Fine. जब यहाँ पे आपने स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, fine, you identified a statement over here, तो आपको नॉर्मली लिखना पड़ता है यहाँ पे said. So like he said. Fine. If you identify the sentence as an interrogative sentence, अगर आपको पता चलता है कि मेरा सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फाइन, जस्ट पुट इट देयर. आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अब आप बता दीजिए यहाँ पे ही आस्क्ड, फाइन. लाइकवाइज अगर आपको लगता है यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ओके, सिंपल, राइट, ही एक्सक्लेम्ड. लाइकवाइज अगर यहाँ पे लगता है आपको दैट इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, फाइन. सो ये चीज आपको पहले ही पता होनी चाहिए, ठीक है. यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग. इंपरेटिव सेंटेंस है, आप लिखेंगे ही ऑर्डर्ड, ही डायरेक्टेड, ही इंस्ट्रक्टेड, ही आस्क्ड, ही रिक्वेस्टेड, ये सारी चीजें. तो इसीलिए मैंने पहला पॉइंट जो बता दिया आपको, यू शुड बी नोइंग जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस लिखा गया होता है डायरेक्ट स्पीच में, वो कौन सा सेंटेंस है. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. Statement is there, interrogative sentence is there, exclamatory sentence is there, and likewise there is another one that is called as imperative sentence. Number 1, ये हो गई पहली बात. दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए जब हम इसको नरेशन को कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, वहां पे आपको एक और पॉइंट पता होना चाहिए, दैट इज दिस वन, कि आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि टेंस कौन सा यूज किया गया है, which tense has been used in the sentence. ठीक है, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस होता है ये किस टेंस में लिखा गया है. हैज इट बीन यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस और द फ्यूचर टेंस. सो अकॉर्डिंगली आपने इसको चेंज करना है. फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रेजेंट में सेंटेंस है, चेंज इट इनटू पास्ट विद सम एक्सेप्शंस आल्सो, चेंज इट इनटू पास्ट. देन नेक्स्ट वन यू हैव, अगर पास्ट का सेंटेंस है, चेंज इट इनटू परफेक्ट. अगर परफेक्ट का सेंटेंस है, कीप इट अनचेंज्ड. इफ यू हैव द यूनिवर्सल ट्रुथ, leave it unchanged. If you have the facts, leave them unchanged. So this is the thing that you have to remember. Okay, दो चीजें आपको, एक तो मैंने बता दिया आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लीजिए जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया होता है. दूसरा मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया that you have to just keep this thing in mind कि आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा टेंस यूज किया गया है. फाइन. थर्ड थिंग इज देयर, तीसरा पॉइंट जो आप याद रखेंगे जब आप नरेशन कर रहे होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वहां पे जो प्रोनाउंस यूज किए गए हैं वो कौन से प्रोनाउंस हैं, एंड यू हैव टू चेंज देम अकॉर्डिंगली. आई का यूज किया गया होगा, वी का यूज किया गया होगा, यू, ही, शी, इट, दे, जो भी प्रोनाउन यूज किया गया होगा, चेंज देम अकॉर्डिंगली. Fine. Likewise, there is another thing that you have to see to, अगर आपके सेंटेंस में होगा जो इन्वर्टेड कॉमास में आपका सेंटेंस है, अगर उसमें है, वो होता है if any possessive adjective has been used. If any possessive adjective has been used, change that possessive adjective accordingly. उसको भी आप उसी तरीके से चेंज कर लेंगे. Fine. So this is the thing. लास्ट पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा. हाँ, adverbs of time and adverbs of place. अगर adverbs of time वहां पे यूज किए गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर वहां पे tomorrow यूज किया गया है, you have to change it into the day after. Fine. So this is the way. Likewise अगर वहां पे यूज किया गया है, फॉर एग्जांपल adverbs of place, adverbs of वहां पे लिखा गया है, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे here है, आप इसको लिखेंगे बाद में there. So these are the 5 points that you need to remember when you are changing the narration. Fine. So ये हमारा क्वेश्चन था नरेशन से रिलेटेड जो यहाँ पे हमें दिया गया है, and it carries 5 marks. ठीक है. Well, after narration, you have another question that is called as, over here we can see, यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन है punctuation से related. जो punctuation marks की बात करी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, I can just show it to you. Here you have the question related to the spellings, you have the question related to the tenses even, or the point is punctuation marks. यहाँ पे देखना होता है, कॉमा का यूज किया गया है, ठीक है, एंड वी हैव द थिंग. अगर यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स की बात करेंगे तो पंक्चुएशन मार्क्स, बट द क्वेश्चन ओवर हियर एट द मोमेंट राइट हियर आई विल जस्ट ऐड टू यू. ओके, another question, that is question number 8 you have over here is the editing. Fine. See this one, 5 marks question it is.
Simply you have to remember over here, the question will be related to actually the tenses, this one, fine. Or there are some errors that you have, or spelling errors, and then there are the errors related to the punctuation marks. The passage is given to you, fine. In this passage, you have to see how the errors have been made, and you have to just write the actual answer over here. So this is your grammar section. Now going down, we have over here given the writing section. Let's talk about this one now. अब हम यहाँ पर राइटिंग सेक्शन की बात करेंगे। राइटिंग सेक्शन में आपको जो दिया गया है पॉइंट, ठीक है, सबसे पहला आपको दिया गया होता है डायलॉग यहाँ पे, एंड दिस डायलॉग हैज गॉट 3 मार्क्स। ऑब्वियसली राइटिंग सेक्शन जो आपका होता है, राइटिंग सेक्शन में आपके होते हैं 20 मार्क्स, फाइन। और 20 मार्क्स में क्या करना होता है, राइटिंग का मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी होगी, द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट नो इज दैट यू टेक केयर ऑफ द फॉर्मेट। फॉर्मेट में सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। हम लोग क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट में ही हम गड़बड़ कर देते हैं, एंड जो कंटेंट होता है, ऑल्दो दैट मस्ट बी गुड और दैट इज गुड, ठीक है, जो आपने लिखा होता है, बट फॉर्मेट की वजह से वो सारा खत्म हो जाता है, और ऑब्वियसली उसको मार्क्स वहीं पे डिडक्ट हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यू टू टेक केयर ऑफ द फॉर्मेट। आपको करना क्या होगा, आपके पास जितने भी सोर्सेज अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल आपके पास इंटरनेट होता है, या आपके पास और कोई बुक होगी, ग्रामर की बुक होगी या राइटिंग की कोई बुक होगी, उसमें आप देख लीजिए लाइक एडिटिंग कैसे करी जाती है, उसके बाद दूसरा जो आपको पर्टिकुलरली लेटर राइटिंग कैसे लिखी जाती है, पैसेजेस कैसे लिखी जाते हैं, एंड डू चेक ऑल दोस थिंग्स। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना होता है, डायलॉग लिखनी, यहाँ पे डायलॉग को कंप्लीट करना है। यहाँ पे डायलॉग दिया गया है, डायलॉग इज गिवन ओवर हियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यू हैव टू जस्ट एज्यूम योरसेल्फ टू बी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इंटरव्यूअर है, लेट्स एज्यूम आई विल एज्यूम माय सेल्फ एज एन इंटरव्यूअर, ठीक है, जो सामने जिसका इंटरव्यू है तो उसका नाम होता है सीमा, फाइन। लेट मी जस्ट आस्क सम क्वेश्चंस टू सीमा एंड सी। अब हम एज्यूम करेंगे मैं इंटरव्यूअर हूं और जो दूसरा मेरे सामने है वो सीमा है। लेट मी सी, जब मैं उससे क्वेश्चन कोई पूछ लेता हूं, वो मुझे वहां पे कैसे आंसर्स दे देते हैं। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाट यू कॉल एज द डायलॉग राइटिंग। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, डू द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड। सबसे पहली बात यहाँ पे नोटिस राइटिंग की करी गई है, फाइन। नोटिस राइटिंग में आपको क्या दिया जाता है, यहाँ पे आपको नोटिस राइटिंग में एक लेटर दी गई है, फाइन। लेटर इसलिए दी गई है सो दैट यू कुड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर एंड राइट द नोट्स, फाइन। नोट्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं आपके सामने, ठीक है, तो उन फॉर्मेट्स में से आप किसी एक को सिलेक्ट कर ले, मास्टर वन ऑफ द फॉर्मेट्स दैट इज गिवन ओवर देयर, ठीक है, एंड ऑब्वियसली यू विल गो विद दैट। अगेन आई टेल यू, फॉर्मेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू पीपल ओवर हियर इज दिस वन। सबसे एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, जब आप एक पेज पे नोट्स लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज माय पेज, इस पेज पे और कुछ ना लिखें, ठीक है। अगर आपने एक या दो लाइन्स लिखी है वहां पे, या 3 लाइन्स लिखी है वहां पे, लीव दैट पेज असाइड। आप वो वाला पेज इन चीजों के लिए सिलेक्ट कर लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया नोट्स राइटिंग के लिए आप वो वाला पेज सिलेक्ट कर लीजिए जो पेज खाली है, जिसमें कुछ ना लिखा हो, तो दैट विल लुक ब्यूटीफुल, दस विल गेट यू गुड मार्क्स, फाइन। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका आ जाता है मैसेज राइटिंग का। मैसेज राइटिंग के लिए आपके पास 4 मार्क्स होते हैं, ठीक है। अगेन आई सजेस्ट यू, यहाँ पे आपको दी गई है पॉइंट्स जो है आपके, जो पॉइंट्स यहाँ पे है, इन्हीं पॉइंट्स में आपको डेवलप करना है मैसेज को। एंड सिंपल थिंग दैट यू विल डू इज अगेन टेक केयर ऑफ द फॉर्मेट। देन यू हैव लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आपको क्या करना है, एनी वन ऑफ द टू। यहाँ पे दोनों लेटर्स दी गई है, एक लेटर आपको दी गई है व्हाट यू कॉल हियर एज द व्हाट यू कॉल इनफॉर्मल लेटर आपको दी गई है, दूसरी दी गई है फॉर्मल लेटर। Once again I mentioned it to you that take care of the format when you are writing the letters. Format पे देख लीजिए कि formal letter कैसे लिखी जाती है, format पे देख लीजिए। So while in the writing section I was telling you that do take care of the formats. आप formats का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको necessarily देखना होगा कि आप कौन सी लेटर लिख रहे हैं। अगर आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी बता दिया, आप लिख रहे हैं फॉर्मल लेटर, तो फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट देख लीजिए और उसी को फॉलो करेंगे एग्जाम्स में भी, ठीक है। लाइकवाइज इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, इनफॉर्मल लेटर का भी ध्यान रखिएगा उसी तरीके से। सी सिंपल एग्जांपल आई विल गिव यू। अगर हम लेटर राइटिंग की बात करेंगे ना, फॉर्मल लेटर फॉर एग्जांपल, नॉर्मली हम लिखते हैं द प्रिंसिपल। अगर मैंने यहाँ पे देखा, फॉर्मेट का ध्यान किस तरीके से रखना है, मैंने यहाँ पे लिखा द प्रिंसिपल, फाइन। टी कैपिटल लिखना है, पी कैपिटल लिखना है,
और द प्रिंसिपल जब मैंने देखा इसको एक्सट्रीम लेफ्ट पे मैं ले जाता हूँ, द प्रिंसिपल, टी कैपिटल है, प्रिंसिपल कैपिटल है, फाइन। इंस्टेड ऑफ से फॉर एग्जांपल टुमारो आपके वहां पे आ जाता है क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू द एडिटर, तो आप प्रिंसिपल को चेंज करके वहां पे एडिटर लिखें, वहां पे लेटर आ जाती है मैनेजर को, प्रिंसिपल को चेंज कर लीजिए, मैनेजर को लिख लीजिए वहां पे। सो देयर इज नो इशू विद रिगार्ड्स दैट। जैसे जिस तरीके से आप अपनी एक लीव एप्लीकेशन लिखते हैं उसी तरीके से आपको एक फॉर्मल लेटर लिखनी होगी, नथिंग मोर देन दैट, फाइन। दूसरा जो आप लिखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल है, ही बिलोंग्स टू एबीसी स्कूल, यहाँ पे एबीसी स्कूल से बिलोंग करता है, लिख लीजिए स्कूल का नाम, फाइन। तो ये स्कूल कहाँ पे फॉलो करते हैं, लेट्स पुट इट लाइक दिस, बिलोंग इट इज इन सोपोर। तो 3 पार्ट्स है आपके, तो उसी 3 पार्ट्स को, उन्हीं 3 पार्ट्स को लिख लीजिए एंड thus you will be done with this one। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग गलतियां कर लेते हैं, जब वो इंस्टीट्यूशन का नाम लिख रहे होते हैं, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखने के साथ में क्या कर लेते हैं, they write the place in the same line, that should not be done। let us divide it into 3 parts, 1, 2 and 3, आपका काम हो जाएगा, fine। so this is what I mean over here when you are doing the writing section। हाँ, एडिटर के टाइम पे एक बात जरूरी बताना है, जब हम एडिटर को लेटर्स लिख रहे होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी हैव सीन, लास्ट पे हम क्या लिखते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ पे कोई वाटर स्कैर्सिटी है, फाइन, हम लास्ट पे एडिटर को ही बोल देते हैं जी भाई आप आ जाइए हमारे मसले को ठीक कर दीजिए। इट इज नॉट द एडिटर हु इज गोइंग टू सॉल्व योर इश्यूज, वो आपके इश्यूज को सेटल नहीं करने वाला है, आपका इश्यू सेटल करेगा जो कंसर्न अथॉरिटी होती है। सो आप उसको बता दीजिए सिंपली इतना कि आप इसको हाईलाइट कर लीजिए थ्रू योर स्टेटमेंट न्यूज़पेपर, बस, ठीक है। डोंट टेल हिम और डोंट आस्क हिम टू जस्ट डू दिस थिंग एंड दैट थिंग, वो कुछ नहीं करने वाला, वो बस अपने न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश कर ले, बस हम उसका काम उतना ही होता है, ठीक है। हाँ, लेटर राइटिंग के टाइम पे एक और चीज, अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे होते हैं, फॉर्मल लेटर के टाइम पे डू नॉट गिव द सजेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, वो चीजों को दूर ही रखें, पैसिव वॉइस का यूज ना करें, ठीक है। एनीवेज लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे पैराग्राफ, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, यहाँ पे मैंने अ शॉर्ट पैराग्राफ मैंने बोला, 5 मार्क्स, वेरी मच इजी, बहुत आसान है। द थिंग्स हैव बीन गिवन ओवर हियर। एक्चुअली ये वाला जो आपके सिलेबस में जो आप देखेंगे वहां पे ये वाला जो क्वेश्चन होता है आपका, उसमें दिखाए जाते हैं, एक तो पैराग्राफ राइटिंग दिखाई जाती है वहां पे आपको, दूसरा आर्टिकल राइटिंग दिखाया जाता है आपको, और थर्ड वन जो दिखाया जाता है वो होता है वहां पे स्पीच राइटिंग, यानी कि इन 3 में से आपको एक पूछा जाएगा, 3 में से आपको एक करना है। जैसे मैंने अभी अर्लियर आपको दिखा दिया, यहाँ पे जब हम लेटर राइटिंग की बात कर रहे थे, लेटर्स में से आपको या तो फॉर्मल लेटर लिखनी है या इनफॉर्मल लेटर लिखनी है, जिन 2 में से एक आपको करना होगा। इसी तरीके से यहाँ पे जब मैंने पैराग्राफ राइटिंग की बात करी ना, पैराग्राफ राइटिंग और यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग की बात करेंगे, और इसी तरीके से आपके सिलेबस में मेंशन किया गया, ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर, सिलेबस में आपका मेंशन किया गया स्पीच राइटिंग, ठीक है। एंड इवन एट टाइम्स वी हैव नोटिस्ड इट, हमने देखा है वहां पे कि दे आस्क यू द एसेज, ठीक है, लीव एसेज एसेज, चलो 2 मिनट के लिए इसको एक साइड पे छोड़ देते हैं, लेकिन इन 3 में से 1 स्पीच, 2 आर्टिकल, 3 पैराग्राफ, इन 3 में से आपको एक ही करना होता है, ठीक है। सो यू वर्क ऑन दीज थिंग्स सो दैट यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं, फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे हिंट्स दी गई है, ठीक है, जस्ट यू हैव टू डेवलप दीज हिंट्स इनटू द सेंटेंसेस, इनको डेवलप कर लीजिए एक सेंटेंस में, ठीक है, लाइक कंट्रोल रोबोट, ठीक है, तो इसको डेवलप कर लीजिए इनटू अ सेंटेंस, योर जॉब इज डन, आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं। दिस इज द थिंग। हाँ, एक बात मैं बताना जरूर चाहूंगा यहाँ पे, व्हेन द क्वेश्चन इज राइट अ पैराग्राफ, इसका मतलब होता है एक पैराग्राफ आपको लिखना है, only one, you cannot exceed it or you cannot stretch it to second one, you cannot even afford to write one more word, आप सेपरेट वर्ड भी नहीं लिख सकते हैं, तो लाइन की तो बात ही नहीं है, या एक्स्ट्रा पैराग्राफ की बात ही नहीं है। यहाँ पे हमारे बच्चे क्या कर लेते हैं, वो ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और पता नहीं उनको उस पैराग्राफ में ज्यादा कंट्रोल हो जाता है, तो इसी वजह से वो क्या कर लेते हैं, दे जस्ट गो ऑन राइटिंग एंड राइटिंग, वो 3-4 पैसेजेस लिख देते हैं, 3-4 पैराग्राफ लिख डाल देते हैं। इसीलिए याद रखिएगा, इट मीन्स अ पैराग्राफ, अगर आपने एक से ज्यादा लिखा तो आप फॉर्मेट के बाहर चले जाते हैं। फॉर्मेट का मतलब हो जाता है कि अगर आप फॉर्मेट से बाहर हो गए तो आपके मार्क्स वहां पे डिडक्ट हो जाएंगे। So be careful about it that you only write one paragraph. Take care of this thing. You have a beginning there in the paragraph, you have a middle, and then there is a close. Fine. So this was another question, question number 13. Then going down to the next section. Again very much easy. यहाँ पे आपका दूसरा section जो होता है, this is called as the literature section. ये आपका लिटरेचर सेक्शन है, that I did mention earlier. ये मैंने पहले भी आपको बता दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको फिर से पूछे जाएंगे 5 questions. Remember this one. 5 questions आपको पूछे जाएंगे. 5 excerpts will be given to you.
5 एक्सर्प्ट्स आपको दिए जाएंगे और उन 5 एक्सर्प्ट्स में से आपको करने होंगे 3, ठीक है। 30 मार्क्स यहाँ पे है, याद रखिएगा इस लिटरेचर सेक्शन में 30 मार्क्स है। 3 questions will be asked, you have to write 5 are given over there। ये जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर A, B, C and going down, यहाँ पे आप नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे है आपका C, then D and E और इनमें से आपको सिर्फ करने होंगे 3 और 3 के आपको मिल जाते हैं 6 मार्क्स। Again I see over here यहाँ पे now the globe is shrunk tight, ठीक है। यहाँ पे the poet uses the word globe to indicate something different from literal meaning। What is it? अब यहाँ पे globe दिखाया गया, क्या दिखाना चाहता है? The poet describes her mother with a simile, ठीक है। Point out the simile and explain। तो that means you must be knowing, आपको पता होना चाहिए poetic devices। यहाँ पे मैं फिर से एक बात बता दूँ, poetic devices में most important which are asked here in this section are like simile, metaphor, personification, imagery, fine। ये 4 मैंने या कभी कभी पूछा जाता है alliteration, ठीक है। ये 4-5 पोएटिक डिवाइसेस जो है आप लोगों ने पता होनी चाहिए। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, आपकी जो बुक होती है, बुक में क्या करना है, आप हाईलाइट करके रख लीजिए। ये ग्रीन से मैंने हाईलाइट करके रख लिया, फॉर एग्जांपल ये है alliteration, ब्लू से मैंने हाईलाइट करके रख दिया, दिस इज सिमिली, येलो से मैंने हाईलाइट करके रख दिया, दिस इज मेटाफर। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। यू सी दिस, व्हाट कंपेनियन डू यू सी इन द अबव लाइंस, आप यहाँ पे किस कंपेनियन को देख रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू हैव ओवर हियर इन दिस वन। तो यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन करना होगा। देन देयर इज अनदर क्वेश्चन जिसको आप नॉर्मली बोलते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस। आपके यहाँ पे टेक्सचुअल क्वेश्चंस होते हैं और टेक्सचुअल क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, जो आपकी बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए होते हैं वही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे, यू विल गेट 12 मार्क्स। So questions are given over here जो टेक्स्ट के पीछे, if you have read the text book properly, अगर आपने टेक्स्ट बुक को properly पढ़ा है, and you will be easily able to answer these questions. For example, why does Mrs. Bennet think that Mrs. Long is selfish? क्यों लगता है आपको, ठीक है। Why does Annie need to give a brief sketch of her family? What does Mandela mean when he says simply the sum of the all the African patriots? ठीक है, ये सारी चीजें जो पूछी जाती है, these are the questions that you have already done, ये आपने किए होते हैं। और यहाँ पे 16th क्वेश्चन जो होता है, यहाँ पे 16th क्वेश्चन क्या है, 6 मार्क्स या आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे आपका है थीम इज देयर, वन ऑफ द क्वेश्चंस, या ह्यूमर इज देयर, आयरनी इज देयर, टाइटल इज देयर, ये 4 क्वेश्चंस लास्ट के पार्ट्स में पूछे गए हैं वहां पे, तो आप लोगों ने ये वाला यहाँ पे देख लेना होगा, ठीक है। देन देयर इज अनदर वन, यू हैव टू टॉक ऑफ द कैरेक्टर स्केचेस। तो कैरेक्टर स्केच में मैं बता दूं आपको, कैरेक्टर स्केच में आप लोग याद रखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप बिगिनिंग में जाएंगे तो आप ग्रिफिन को देखेंगे वहां पे, लाइकवाइज यू हैव लोमो, यू हैव पापाची, यू हैव मामाची, यू हैव एंटोनियो, यू हैव शेरलॉक। सो दीज आर सम ऑफ, यू हैव बोली, ठीक है। ये सारे जो है ये आपको यहाँ पे याद रखने होंगे। इट इज इन टोटल आपके 11 कैरेक्टर्स आ जाते हैं टोटल पूरी बुक में। यू कैन जस्ट वर्क ऑन दोज कैरेक्टर्स। और लास्ट पे यहाँ पे बताया गया, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको 6 मार्क्स फिर से मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, द कोर्स ऑफ लाइफ चेंज्ड ड्यू टू द नेकलेस। कमेंट, अगर आपने नेकलेस अच्छे से पढ़ा होता है, you will be easily able to answer this question, ठीक है। so you do not stick to only one thing कि आपने रट्टा लगा लिया जो पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं, हो जाएगा काम आपका। no, that's not the only thing। अगर आप टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, then you will be easily able to answer these questions। that's it from my side। I wish you all the best for your exams। thank you very much। take care of yourself।